Good morning, everyone. In today's class, we will study about breathing. So, what do you mean by breathing? It is the process of inhalation and exhalation. Inhalation means intake of gas. When we inhale, okay, so which gas we take? We intake oxygen gas, and the gas we give out, that is exhalation, and that gas is carbon dioxide. So the process of intaking of oxygen gas and giving out carbon dioxide gas means inhalation and exhalation. It is called breathing. And the number of times a person breathe in a minute is known as or is termed as breathing rate. breathing rate क्या होता है कि 1 मिनट में कोई पर्सन जो है वो कितनी बार ब्रीथ करता है. नंबर ऑफ इनहेलेशन एंड नंबर ऑफ एक्सहेलेशन you will count, you will record in a minute. Okay, so that is called the breathing rate. Now we will study the breathing mechanism. कि how do we breathe? When you breathe, place your hands on your chest. You will feel the movement of your rib cage. Okay, so breathing involves the movement of rib cage as well as the diaphragm. Now we will see the figure ki how do the rib cage and diaphragm moves. Okay, now see the figure. See, this is a nasal passage. Through this nasal passage जो air जो है वो enter करती है, enter करके lungs में जाती है. Okay, these are two lungs. Okay, and the lungs are placed inside the rib cage. ये आपका rib cage है, lungs जो है वो इसके अंदर present होते हैं. And the muscular sheet, this is a muscular sheet present at the bottom of rib cage. It is known as diaphragm. This is your diaphragm, this sheet. Okay, this is known as diaphragm. Now what happens when we inhale? जब हम inhale करते हैं, when we intake oxygen gas, our rib cage जो है वो उसकी movement जो है वो outward होती है. You place your hand on your chest and just inhale it. Inhale oxygen gas. जैसे आप inhale करेंगे, आपका rib cage जो है वो ऊपर की तरफ उठेगा. तो means your rib cage moves up. Okay, जब rib cage जो है ऊपर उठता है and your diaphragm की movement क्या हो जाती है, वो down हो जाती है. Diaphragm moves down. अच्छा ठीक है, अगर diaphragm जो है वो down हो गया तो यहाँ जो है इधर chest cavity के अंदर जो है वो space जो है वो ज्यादा हो जाएगा. If the space is more, अगर यहाँ ज्यादा स्पेस है तो एयर जो है वो रश इन करेगी, लंग्स में जाएगी और लंग्स आपके जो है वो एक्सपैंड हो जाते हैं. ओके, सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन योर रिब्स moves outward. You can feel this by placing your hand on the chest. When ribs move up and outwards, your diaphragm goes down. As the diaphragm moves down, तो chest cavity में space जो है वो बढ़ जाता है, increase हो जाता है, जिसकी वजह से एयर जो है वो रश इन करती है. मींस एयर जो है वो अंदर आती है लंग्स में. जैसे ही लंग्स में एयर आती है तो लंग्स जो है वो आपके एक्सपैंड हो जाते हैं. Okay, now we will see during inhalation the movements of rib cage and diaphragm during exhalation. Okay, exhalation में आप देखेंगे. Exhalation means when we give out gas. जब हम gas exhale करते हैं, place your hands on your chest and exhale. When you exhale, you will feel कि ribs जो है वो inward या फिर आपकी downward move करती हैं. ठीक है, जब रिब्स जो है वो डाउनवर्ड मूव करेंगी, ये डायफ्राम जो है वो अपवर्ड मूव कर जाएगा. तो अंदर चेस्ट कैविटी के अंदर जो है वो स्पेस जो है वो कम बचता है, रहता नहीं है, कम स्पेस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है उसका स्पेस, जिसकी वजह से जो एयर जो है लंग्स के अंदर वो नेजल पैसेज के थ्रू बाहर आ जाती है एंड योर लंग्स कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ rib cage and diaphragm during inhalation and exhalation. So what you will write? You will write in 2 points. कि during exhalation ribs move down or inwards और diaphragm जो है it moves up. Okay, as these movement take place, so it decreases the area or it decreases the space inside the chest cavity and air rushes out. And the air that we exhale, that we give out, that is carbon dioxide. Okay, now the next is what do we breathe out? What do we breathe out? हम क्या breathe in करते हैं और क्या breathe out करते हैं? ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, डजंट मीन कि हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन जा रही है.
एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स होती है, वाटर वेपर्स भी होते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, देखो इनहेल एयर में ऑक्सीजन जो है 21% हमारी बॉडी के अंदर जाती है, ओके और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जाती है, एंड इट ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर बट इन लेस अमाउंट। एंड व्हेन वी एक्सेल्ड एयर, जब हम एयर गिव आउट करते हैं, तो उसमें भी सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही नहीं हम एक्सेल करते, उसमें मिक्सचर होता है ऑक्सीजन का एंड वाटर वेपर का भी। तो ऑक्सीजन हम कितनी एक्सेल करते हैं? 16%। इनहेल हमने 21% की और एक्सेल हमने 16% की, ओके। एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमने सिर्फ 0.03% इनहेल की थी, बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने एक्सेल की है दैट इज 4%, मींस मोर देन inhaled air, okay. And it also contain water vapor but in more amount, in large amount, okay. The next come breathing in other organisms. Now there are other organisms, how do they breathe, we will study now. Let us first see for the cockroach insect. इनमें क्या होता है, कॉकरोच में ना छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, दीज ओपनिंग्स आर नोन एज स्पाइरेकल्स। इन ओपनिंग्स को क्या कहते हैं? स्पाइरेकल्स बोलते हैं। एंड दीज ओपनिंग्स आर कनेक्टेड विद ट्यूब्स, दीज आर द ट्यूब्स, एंड दीज ट्यूब्स आर नोन एज ट्रैकियल ट्यूब्स, ठीक है। इन ओपनिंग्स के थ्रू जो है कॉकरोच जो है ऑक्सीजन को इनहेल या फिर गैसेस का, यू कैन से कि गैसेस का वो एक्सचेंज करते हैं थ्रू दीज ओपनिंग्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स। एंड अर्थवर्म, हाउ डू अर्थवर्म ब्रीथ? अर्थवर्म जो है वो कैसे ब्रीथ करती है? अर्थवर्म की स्किन जो है दैट इज वेरी सॉफ्ट, इनकी स्किन जो है बहुत सॉफ्ट होती है एंड मॉइस्ट होती है इनकी स्किन, एंड द गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू द स्किन ओनली। इनमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, इनकी स्किन से ही गैसेस का जो है एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन जो है वो इनकी बॉडी के अंदर जाती है, जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्किन से ही बाहर आ जाता है, ओके। सो exchange of gases take place in earthworm, how? Through skin. Now breathing underwater, fish जो है they remain underwater. तो फिश कैसे जो है, इनके स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं बाय विच दे ब्रीथ, थ्रू विच दे ब्रीथ। सो दे हैव कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, देखो यहाँ कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दीज आर कॉल्ड गिल्स, ओके। ये गिल्स से जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। एंड सम आर देयर लाइक फ्रॉग, फ्रॉग इज एन एम्फीबियन, वो अंडर वाटर भी रहता है एंड लिव ऑन द लैंड ऑल्सो। सो हाउ डू दे ब्रीथ? पानी के अंदर तो वो गिल से जो है अपना रेस्पायर करते हैं या ब्रीथ करते हैं, दे ब्रीथ थ्रू गिल्स अंडर वाटर, बट व्हेन दे आर ऑन लैंड, जब लैंड पे हैं तो दे डू नॉट हैव लंग्स, उनके पास लंग्स नहीं है। जब वो लैंड पे आते हैं तो वो अपनी स्किन से ही जो है एक्सचेंज करते हैं गैसेस का, ओके। सो द नेक्स्ट is how do plants respire? प्लांट्स में क्या होता है, लीव्स हैं, लीव्स का ऑल ऑफ यू नो कि दे हैव, लीव्स हैव टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन इट, थ्रू दीज टाइनी पोर्स दे आर कॉल्ड स्टोमेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। एंड रूट्स में भी रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर क्या करते हैं, सॉइल्स के अंदर, जैसे सॉइल पोरस है तो वहां सॉइल के अंदर जो एयर होती है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो वहीं से ही हो जाता है, रूट हेयर जो है वो सॉइल से ही एयर लेते हैं एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। इवन ये जो स्टेम है, वुडी पार्ट है, इसमें भी छोटे छोटे जो है आपके पोर्स होते हैं थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, ओके। व्हाट वुड हैपन इफ द पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड? अगर इनको ओवर वाटर कर दिया जाए, मींस इनमें पानी जो है इनको ज्यादा दे दिया जाए, व्हेन यू आर वाटरिंग द प्लांट्स, अगर इसको हमने ज्यादा पानी दे दिया तो व्हाट विल हैपन, उसको इतना वाटर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो सॉइल के अंदर जो है वो वाटर रहेगा, सॉइल जो है वो पोरस नहीं रही, उसके अंदर अब एयर जो है वो नहीं रहेगी, तो प्लांट्स जो है वो रिस्पायर या नहीं कर पाएंगे, उनमें जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो नहीं हो पाएगा, एंड फाइनली दे कैन डाई, okay. So this was all about your chapter breathing, respiration in organisms. It's over now. Thank you class and have a nice day.